مولا کوئی ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا عطا کر دے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولا کوئی محمد بن قاسم جیسا بیٹا عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، کیا صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے کے لیے ہم نے کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ آج زمیندار لوگ آپ بیٹھے ہو، کسان لوگ آپ بیٹھے ہو، کسان لوگوں کا یہ کہنا ہے، زمیندار جو زمینوں پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے، زمین اچھی نہ ہو تو فصل اچھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، اگر زمین اچھی ہو فصل اچھی ہوتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ماں اچھی ہو تو نسل اچھی ہوتی ہے، گود اچھی ہو تو بچے اچھے ہوتے ہیں۔ کیا اس کے لیے اولاد اچھی کے لیے، نیک اولاد کے لیے ہم نے کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ جب بیٹیاں شادی حالوں میں رخصت ہو تو پھر گھر میں صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ بیٹی میرج حالوں میں رخصت ہو تو پھر گھر میں محمد بن قاسم جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ آج رخصتی بھی شادی حالوں میں ہوتی ہے، رشتے بھی میرج حالوں میں ہوتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے نہ میں نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ ماں جب گھر سے نکلتی ہے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے، باپ بوڑھا جب گھر سے نکلتا ہے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے، ہر بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے اماں تم میرے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، لڑکی کیسی ہو، اس کی آنکھیں نشیلی ہو، اس کے ہونٹ گلابی ہو، اس کی چال مورنی جیسی ہو۔ یار ہم اپنی ماں کو یہ تو نصیحت کرتے ہیں اماں بیٹی دیکھنے جا رہی ہے، بہو دیکھنے جا رہی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہو، زبان ایسی ہو، چہرہ ایسا ہو، چال ایسی ہو، لیکن آج کوئی بیٹا ایسا نہیں جو اپنی ماں سے کہے ماں تو بیٹی دیکھنے جا رہی ہے، بہو دیکھنے جا رہی ہے، جب بے اس کا چہرہ دیکھے تو ایسے جما کے نظریں دیکھنا اس کی پیشانی پہ سجدوں کا داغ موجود ہے کہ نہیں۔ ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہم اپنی ماں سے یہ نہیں کہتے اماں تو رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، جب اس سے بات کرے اس کی منہ کی مہک سونکھنا، اس کی منہ کی خوشبو سونکھنا، اس بہو کے منہ سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی، اس سے دیکھنا اس کے منہ سے درود کی مہک آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آج کوئی بیٹا ایسا نہیں جو اپنی ماں سے کہے ماں تو میرے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہے، جب اپنی بیٹی کو دیکھے، بہو کو دیکھے، اس کی چال دیکھنا، اس کی چال میں سیدہ فاطمہ تو زہرا والا حیا موجود ہے کہ نہیں۔ لوگوں، جب ہم اپنی گھر میں ایسی بیٹی لائیں گے، ایسی بہو لائیں گے، خدا کی عزت کی قسم پھر پیدا ہونے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا محمد بن قاسم پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بیٹا قرآن کا قاری پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ نمازی پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ درود پڑھنے والا پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ نوافل پڑھنے والا پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ مسجد آباد کرنے والا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ نمازی پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ قاری پیدا ہوگا، پھر پیدا ہونے والا بچہ ماں کا بھی حیا کرنے والا پیدا ہوگا، باپ کا بھی حیا کرنے والا پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچوں کے لیے گود کا انتخاب اچھا نہیں کیا، ماں کا انتخاب ہم نے اچھا نہیں کیا۔ یاد رکھو ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد نیک ہوتی ہے۔ دوسری بات، چند نواز صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بس دو باتیں ہیں۔ چند نواز صاحب اس لیے بھی خوش نصیب ہیں کہ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں۔ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے نا، اس بیٹی نے بچپن سے لے کر جوانی تک 18 سال اپنے گھر میں گزارے، 20 سال اپنے گھر میں گزارے، 25 سال اس بیٹی نے اپنے گھر میں گزارے۔ بیٹی جب گھر سے رخصت ہوگی، خدا کی عزت کی قسم گھر کی ہر چیز، میں توجہ چاہوں گا، گھر کی ہر چیز اس بچی کے لیے دعا کرے گی۔ گھر کی ہر چیز کیوں اس بچی کے لیے دعا کرے گی؟ اس لیے کہ اس بچی کے نے اس گھر میں 18 سال گزارے، 20 سال گزارے، 25 سال گزارے۔ اس بچی نے جب اپنے گھر میں بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی زندگی گزاری تو
उस बच्ची को मकान की छत ने रात को उठकर रमजान में सैरी करते भी देखा था, मकान की छत ने सैरी करते भी देखा था। उसी बच्ची को मकान की दीवारों ने कुरान की तिलावत करते हुए भी देखा था। उसी बच्ची को घर की जमीन ने सजदों पे सजदे करते हुए देखा था। वो बच्ची जब घर से रुखसत होगी, मकान की छत भी उसके लिए दुआ करेगी, घर की दीवारें भी उसके लिए दुआ करेंगे। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अपनी बच्चियों को घर से रुखसत करते हैं। और यार मैं ये भी कहूंगा, बेटियों से प्यार भी किया करो। आज घर में बेटा पैदा हो जाए ना, हर बाप खुशी मनाता है, हर बाप खुश होता है, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। लेकिन बेटी पैदा हो जाए हमारा मुंह बन जाता है। क्यों बेटी की पैदाइश पे तेरा मुंह बनता है? इसलिए कि तुझे खुशी है, तेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। सुन, ये बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है, लेकिन जो तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, खुदा की इज्जत की कसम, ये आखिरत का सहारा बनेगी। इमामुल अंबिया बैठे हैं सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में। अचानक कमली वाले की बेटी आ गई, खतूने जन्नत आ गई, सईदा फातिमा तो ज़हरा आ गई। हुजूर बैठे हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब फातिमा आई ना, हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, अल्लाह के रसूल आपके जिगर का टुकड़ा आ गया, कह दे सुभान अल्लाह। बोले, कह दे सुभान अल्लाह। फरमाया आयशा ने कहा, हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल आपके जिगर का टुकड़ा आ गया है। इमामुल अंबिया बैठे थे, बेटी के आने पर कमली वाला उठ के खड़ा हो गया। ये बेटी है, कमली वाले की बेटी आई। और आप बुजुर्ग लोग जानते हैं, बूढ़ी औरतें जो होती है ना, वो अपने दुपट्टे के कोने के साथ कोई ना कोई चीज बांध के रखती हैं। किसी बूढ़ी औरत को देखो, उसने सिक्के बांधे होते हैं। किसी बूढ़ी औरत को देखो, उसने पैसे बांधे होते हैं। किसी बूढ़ी औरत को देखो, उसने चाबियां बांधी होती हैं। दूर की बेटी जब हुजूर के पास आई, सईदा फातिमा तो ज़हरा आई ना, इमामुल अंबिया उठ के खड़े हो गए। खड़े होके अपनी बेटी को जगह दी। हजरत फातिमा जब बैठ गई, कमली वाले ने फरमाया बेटी फातिमा अचानक कैसे आ गई? हजरत फातिमा के जब दुपट्टे की तरफ देखा, हजरत फातिमा तो ज़हरा के दुपट्टे के कोने में कोई चीज बांधी हुई थी। अचानक हजरत फातिमा दुपट्टे को आगे करती है, उस गांठ को खोलती है, दुपट्टे को खोलती है। सुनो ताश वालों, ये मुस्तफा की बेटी है, ये फातिमा तो ज़हरा है, ये खतूने जन्नत है। दुपट्टे के कोने के साथ खतूने जन्नत अपने बाप के पास क्या बांध के लाई थी? जब उसे खोला गया, खुदा की इज्जत की कसम, हजरत फातिमा के दुपट्टे के कोने में सोना नहीं था, चांदी नहीं थी, हीरे नहीं थे, पैसे नहीं थे, सिक्के नहीं थे, कोई और चीज न थी। जब उसे खोला गया, खुदा की इज्जत की कसम, हदीस में आता है रोटी का एक टुकड़ा बांधा हुआ था, रोटी का एक टुकड़ा बांधा हुआ था। कमली वाला तड़प गया। कमली वाले ने फरमाया, फातिमा बेटी, ये रोटी का टुकड़ा क्यों लाई है? फरमाया, बाबा 3 दिन हो गए मैं भूखी हूँ। 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है। फरमाया, मैंने दिल में ख्याल आया, लुकमा तोड़ा, मुंह के करीब किया, ख्याल आया, फातिमा 3 दिन से तो तू भूखी है, ना जाने तेरा बाबा कितने दिनों से भूखा होगा, ना जाने तेरा बाबा कितने दिनों से भूखा होगा। फरमाया, अल्लाह के रसूल आपके लिए लाई हूँ। कमली वाले ने वो रोटी ली ना, रोटी के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा सईदा फातिमा तो ज़हरा को दिया, दूसरा टुकड़ा हुजूर ने पकड़ के कहा, फातिमा बेटी सुन, तू तो 3 दिन के फाके में है, तेरा बाबा 5 दिन के फाके में है। और मैं 5 दिन हो गए, कमली वाले ने कुछ खाया ही नहीं। और लोगों, जब बहन के घर में जाओ ना, बहन गरीब हो या बेटी गरीब हो, तो बहन और बेटी के खानों में ऐब ना निकाला करो। तुम्हें नहीं पता कितना वालिद कितनी मुश्किलों से अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करता है, कितनी मुश्किलों से एक बाप को जहेज का भी इंतजाम करना पड़ता है, एक बाप को 600 बरातियों को भी खाना खिलाना पड़ता है, एक बाप को मोहल्ले के 1000 लोगों को भी खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन हम हैं बेटी वाले के घर में आके खाना खा के नाक तक हम पेट भर के, तीला मुंह में मार के हम
ऐब निकालते हैं। हम कहते हैं खाने में नमक कम था, हम कहते हैं खाने में मिर्चें ज्यादा थी। वो जालिम तेरा तो पेट भर ही गया था, तुझे क्या पता एक बेटी ने अपने जिगर के टुकड़े को कितने मुश्किलों से रुखसत किया है। लाखों का जहेज भी देता है, 1000 लोगों को खाना भी खिलाता है, लेकिन बेटी के बाप को फख्र नहीं होता। आज मेरे दस्तरखान पे 1000 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, बेटी के बाप को जब भी मिलोगे नजरें झुकी होंगी शर्म की वजह से। वो कहेगा अलामा साहब, खान साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, दुआ करना आज अल्लाह मेरी इज्जत की लाज रख ले। दुआ करना आज पर्दे के साथ मेरी बेटी रुखसत हो जाए। और ये मैं ये भी कहना चाहूंगा, अपनी किसी की बेटी को ताना ना दिया करो, किसी की बेटी को रुसवा ना करिया करो। बेटी जब घर में पैदा होती है ना, शऊर की दहलीज पे कदम रखती है तो हर कोई कहता है, बाप भी कहता है पराए घर की है, माँ भी कहती है पराए घर की है, ये भाई भी कहते हैं पराए घर की है, चाचे भी कहते हैं पराए घर की है, मामी भी कहते हैं पराए घर की है। लेकिन यही बेटी जब इस घर से दूसरे घर में जाती है, दूसरे घर वाले भी कहते हैं पराए घर से आई है। और यार बेटी जिस घर में पैदा हुई थी सारी जिंदगी घर वाले कहते रहे पराए घर की है, पराए घर की है, पराए घर की है। दूसरों के घरों में जाती है वो भी कहते हैं पराए घर से आई है, पराए घर से आई है। बता फिर ये मुस्तफा की उम्मती बेटी ये जाए तो कहां जाए। आज तेरा ये अकीदा है दास की जामिया मस्जिद में, तेरा ये अकीदा है सुन्नी कि मैं दुरूद पढ़ूं मदीने वाले सुनते हैं। आज के बाद ये भी अकीदा बना किसी की बेटी को रुलाएगा तो मदीने वाले सुनते हैं, किसी की बेटी को सताएगा मदीने वाले सुनते हैं। इसलिए बेटियों की कदर करो। आखिरी बात, बेटी बेटी होती है, बेटे अपने बाप से इतना प्यार नहीं करते जितनी बेटियां करती है। क्या तुमने नहीं देखा किसी बेटी को पता चल जाए मेरा बाप अस्पताल में है, खुदा की इज्जत की कसम वो घर छोड़ के बच्चों को छोड़ के सीधा अस्पताल आ जाया करती है अपने बाप के पास, मौसम की फिक्र किए बगैर अपने बाप के पास आ जाती है। क्यों? उसे पता है मेरा बाप चंद घड़ियों का मेहमान है, उसे पता है मेरा बाप चंद सांसों का मेहमान है। ये चला गया कौन मुझे बेटी कहेगा, ये चला गया कौन मेरा दर्द दिल सुनेगा। वो यार हमने तो बड़े बड़े बेटे देखे हैं, बाप के जनाजे के बाद थोड़ी देर रोते हैं, रोने के बाद सिगरेट लगाया गम दूर हो गया, 4 यारों में बेटा खड़ा हो गया गम दूर हो गया। लेकिन इतना बता किसी बेटी को पता चल जाए मेरा बाप मर गया है, वो बाप के जनाजे पे आए और उठ के चली जाए, माँ के जनाजे पे आए उठ के चली जाए ना। बेटियां जाना दूर की बात है, खुदा की इज्जत की कसम बेटी जब बाप के जनाजे पे आ जाती है तो नजरें भी नहीं हटाया करती। ये बेटी होती है, बेटियों को सीने के साथ लगाया करो, बेटियों से प्यार किया करो। बेटियों को पता होता है ये चंद घड़ियों का मेहमान है, ये चंद सांसों का मेहमान है। आज के बाद तू मुझे दर्द दिल नहीं सुनेगा मेरा, आज के बाद तू मेरा दुखड़ा नहीं सुनेगा, आज के बाद मेरे सर पे कोई हाथ नहीं रखेगा, आज के बाद तू मुझे सीने के साथ नहीं लगाएगा। जो दर्द दिल सुना करते थे वो कब्रिस्तान चले जाते हैं, फिर बेटियां जिया नहीं करती, जीते जी बेटियां बाप के गम में मर जाया करती हैं।